Good morning, student. In previous class, we all are discussed the structure and function of squamous epithelium tissue and cuboidal epithelium tissue. Today, we will discuss the structure and function of another type of epithelium tissues like columnar epithelium tissue, ciliated columnar epithelium tissue and glandular epithelium tissue. Then, first of all, we will start the discussion related to columnar epithelium tissue. First of all, seeing the structural diagram of columnar epithelium tissue. In this figure, we are already seen a cytoplasm, nucleus, columnar cell and basement membrane. On the basis of diagram, we all are seeing all these cells or columnar epithelium tissue are densely arranged as a tall column shape. जो ये सेल दिखाई दे रहे हैं आपको एक लंबी लंबी कॉलम के रूप में एक दूसरे से चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं एंड द सेल हैव a elongated nucleus, microvilli seen on the free surface of cell. और इसमें आपको माइक्रोविलाई जैसे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर की तरफ बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो नेकेड आई से आसानी से दिख नहीं सकते. यह इस कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर है. देन द फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. द मेन फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर प्रोटेक्शन, secretion of mucus, absorption of nutrients and water in intestine. Means all the function being done inside the intestinal tract or digestive tract. How to provide a protection inside the digestive tract? We all are aware any type of food items being intaken by a human and finally reach inside the stomach, and these intake food items are completely digested with the help of different types of enzymes and in the presence of highly concentrated acid commonly known as HCl. जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीछे की क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हम माउथ कैविटी में लेकर के उसको टीथ के द्वारा चबाया जाता है, फिर गुलेट के थ्रू इसोफेगस से होते हुए फाइनली स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में सिक्रीट होने वाले हाईली कंसंट्रेटेड एंजाइम्स और एसिड उसको डाइजेस्ट करते हैं. फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है. लेकिन इस कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का रोल हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटेक्शन. तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो इस एपिथेलियम टिश्यू के पास क्षमता है कि यह ऐसे सिक्रेटरी सबस्टेंस से एक आवरण फॉर्म करता है अपने ऊपर, म्यूकस की लेयर बनाता है, जिससे उस हार्मफुल एसिड और एंजाइम का स्किन के इंटरनल मस्कुलर स्किन के ऊपर कोई बैड इफेक्ट पड़ने नहीं पाता है. यह इसका सिक्रेटरी फंक्शन है, जो यह म्यूकस का सिक्रेशन करके एक इनरिएक्टिव लेयर बनाता है, जिससे एक सुरक्षात्मक आवरण का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन सुरक्षित रहता है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन रिलेटेड टू कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण. We all are familiar
during the time of digestion. After complete digestion, the digested food material are absorbed inside the duodenum, the lower part of intestine. But how to absorption possible? In previously we all are studied microvilli seen on the surface of the cell of columnar epithelium tissue. अभी जस्ट इसके पहले ही हमने आपको बताया कि छोटे छोटे फिंगर लाइक ग्रूव्स ऊपर की तरफ जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है उसके ऊपर दिखाई देते हैं, और यही जो माइक्रोविलाई हैं, एंड दीज माइक्रोविलाई हैव एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड आइटम्स इनटेक बाय द ह्यूमन और एनिमल्स. जो भी जीव या ह्यूमन बीइंग कुछ खाते हैं, डाइजेशन के बाद जो मटेरियल डाइजेस्टेड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको इस माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में उसको सुरक्षित रखा जाता है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट knowledge related to columnar epithelium tissue. Columnar epithelium tissue, the important tissue found in case of human, but a question arises in your mind, possibly this type of tissue where does found inside our body. Then we discuss a columnar epithelium tissue found inside the inner lining of stomach, intestine, gallbladder, covering layer of epiglottis are commonly called stratified columnar epithelium tissue. Means columnar epithelium tissue are normally found in the inner lining of stomach. जो आंतरिक सतह है स्टमच की वहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं, गाल ब्लैडर में मिलते हैं, और कवरिंग लेयर बनाते हैं ईपीग्लॉटिस की, जो ग्लाटिस को कवर करके रखता है, और यह स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, जो सतही रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के ऐसी संरचना बनाते हैं. तो ये था कॉलमनर एपिथेलियम से रिलेटेड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड देयर लोकेशन. देन वी स्टार्ट डिस्कशन रिलेटेड टू ciliated columnar epithelium tissue. Another important figure related to ciliated columnar epithelium tissue, we see in a cilia, a basal granules, cytoplasm, columnar cell, nucleus and basement membrane. ये आप फिगर में देख रहे हैं. फिगर को ध्यान से देखने के बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे occurrence. Occurrence means a site in which a ciliated columnar epithelium tissue being found. उस साइट के बारे में हम जानेंगे जिस साइट में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू मिलते हैं. तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं ह्यूमन और एनिमल बॉडी में जहाँ पर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की मौजूदगी देखी जाती है. स्पर्म डक्ट्स, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, ओविडक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. स्पर्म डक्ट में
यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ओविडक्ट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। यह 4 साइट हैं जहाँ पर यह एपिथेलियम पाया जाता है। एंड देन डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ciliated columnar epithelium tissue. The shape of the ciliated columnar epithelium tissue are column shape और cuboidal shape। ये दोनों शेप में हो सकता है, या तो कॉलम थोड़ा लंबे शेप में होगा या थोड़ा खींचे हुए शेप में होगा। और इसके अपर सरफेस पर फ्री फॉर्म में सीलिया पाए जाते हैं। और इस एपिथेलियम टिश्यू की एक और विशेषता है कि मॉडिफाइड कॉलमनर सेल से बने होते हैं जो एपिथेलियम टिश्यू की फोल्डिंग बनाते हैं। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू? The main function of ciliated columnar epithelium tissue are movement of mucus, cerebrospinal fluid, urine, sperm and ovum, etc. But aside from where does the participate in the movement of mucus? The flow of mucus being found inside the respiratory tract and also in nasal cavity। नेजल कैविटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को अपवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट में यह सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू सहयोग करते हैं, जिससे म्यूकस एक्स्ट्रा फॉर म्यूकस रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के थ्रू जो एक्स्ट्रा म्यूकस है जो बनता है वो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकालने का काम होता है। देन अ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल in the fluency of cerebrospinal fluid. These cerebrospinal fluid responsible for the movement of sensory and motor response inside our body। सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स के ट्रांसपोर्टेशन में यह भाग लेता है, इसलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन में और मूवेबिलिटी को बनाए रखने में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू अपना सहयोग देता है। देन अनदर फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू आर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। यूरिन के डिपोजिशन में यह सहयोग करता है। एंड द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन केस ऑफ द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, the transport of sperm and ovum during the time of ovulation, the completely developed ovum released from ovary to fallopian tube with the help of ciliated columnar epithelium tissue, and similarly during the time of fertilization the ejaculated sperm finally push up and reach inside the fallopian tube with the help of ciliated columnar epithelium tissue। जैसा कि आपको क्लास 8 में भी बताया गया, अभी यह क्लियर होगा कि ये जो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है ये स्पर्म को फॉरवर्ड पुश करते हैं। जब फीमेल जेनाइटल आर्गन में कापुलेशन के थ्रू इजाकुलेट होते हैं स्पर्म, तो उसको वह फॉरवर्ड पुश करके फिलोपियम ट्यूब तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ठीक ऐसे ही न्यूली फॉर्म ओवम को रिलीज़ करके फिलोपियम ट्यूब तक लाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यह सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे जिसके बारे में आपको बताया गया। देन अनदर
important epithelium tissue or glandular epithelium tissue. First of all, study the structure of glandular epithelium tissue. We see in a structure anterior microvilli, a mucus gland, cytoplasm, goblet cell, nucleus, cell membrane, absorptive cell, and basement membrane. All these are the site of glandular epithelium tissue. Then we will start the discussion related to glandular epithelium tissue. The glandular epithelium tissue are where does found in case of human and other animals. सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है किसी भी टिश्यू के बारे में अध्ययन करने से पहले। वह पाया कहाँ जाता है। देन द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एट्सेट्रा। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो है, ये जो इनर लाइनिंग है गैस्ट्रिक ग्लैंड की, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्टमक में, आग्नेयाशय में और इंटेस्टाइन में ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। स्ट्रक्चर: द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल दैट सिक्रीट बॉडीली प्रोडक्ट्स। यह एक तरह का स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू सेल है जिसके पास यह क्षमता होती है कि वह स्पेशल टाइप के पदार्थों का सिक्रीशन करे, और यही जो स्पेशल टाइप के पदार्थ हैं जिनको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। दीज गैस्ट्रिक जूस एंड डाइजेस्टिव एसिड एंड एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ intake food reach inside the stomach and intestine. Then start the discussion related to the function of glandular epithelium tissue. The formation of multicellular secretory glands which secretes oil, sweets, hormones and enzymes. The glandular epithelium tissue have ability to form a multicellular secretory glands. Means glandular epithelium tissue जो है यह मिल करके एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड का निर्माण करते हैं, एंड दीज ग्लैंड हैव एबिलिटी टू सिक्रीट ऑयल, स्वीट, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. Different types of secretory glands have ability to secrete different types of secreta inside the human body. Like endocrine gland have ability to secrete a hormone. जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं उनको कहते हैं endocrine gland. Then oil gland and sweet gland. Oil gland or sweet gland both are commonly called exocrine gland. What is difference between endocrine and exocrine? Endocrine means secrete their excreta inside the body and directly inside the blood stream, and the exocrine gland secrete their excreta on the surface of the body of human or other animals. Similarly, another secretory glands or gastric gland or fundic glands have ability to secrete different types of digestive enzymes in case of human, and these digestive enzymes participate or utilize during the time of the digestion of food and kill the different harmful pathogens, bacteria, fungus reach inside the stomach during the time of feeding or through
feeding materials. Thank you for watching video. Next topic, connective tissue being discussed in next class. Thank you.